تفصیل میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں آگے بڑھتے ہیں آپ کو بتائیں کہ شہری اولیوں میں آٹا بحران ملتانیوں کو کرنے لگا بے حد پریشان۔ صوبائی حکومت عوام کو آٹا فراہم کرنے میں ناکام ہو گئی، جبکہ آٹے کی قلت اور میدے کی قیمتیں بڑھنے سے نان بھائی بھی خاصی پریشان دکھائی دیے۔ مزید دیکھیے سید زہیر بخاری کی اس رپورٹ میں۔ ملتان میں آٹے کی عدم دستیابی برقرار، پنجاب حکومت عوام کو آٹے کی بآسانی فراہمی ممکن نہ بنا سکے۔ دوسری طرف میدے کی قیمتوں میں اضافے سے نان بھائی بھی خاصی پریشان دکھائی دیے۔ ان کا کہنا تھا کہ شہر میں آٹے کی شدید قلت ہے۔ میدے کی قیمتیں، آٹے کی قیمتیں بڑھتی جا رہی ہیں، اور گیس بھی، بجلی بھی یہ مہنگی ہے۔ اس وجہ سے لوڈ شیڈنگ کافی ہے، اس وجہ سے ہم بھی پریشان ہیں، شہری سے منہ ماری کرنی پڑتی ہے۔ نان بھائیوں کا مزید کہنا تھا کہ میدے کی قیمتیں پہنچ سے باہر ہو گئی ہیں۔ مارکیٹ میں نان کی قیمت 30 روپے ہے، جبکہ کاریگروں کو مزدوری دینے کے لیے بھی اب پیسے نہیں بچتے۔ قیمتیں اتنے آسمان پر پہنچ گئے ہیں جو عوام کو اتنی روزی نہیں ملتی۔ وہ مالک کہاں سے کمائے گا، ہمارے کو کہاں مزدوری پوری دے گا۔ ہم جہاں ٹرالی میدے خریدتے تھے اتنی مہنگائی ہو گئی ہے، ہم تازی بوری لے کے آتے ہیں، خریدتے ہیں، لگاتے ہیں۔ پریشان حال شہریوں نے صوبائی حکومت سے آٹے کی فراہمی کو یقینی بنانے کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرامین فہیم شاہ کے ساتھ سید زہیر بخاری، روہی، ملتان۔ خانے وال میں شہریوں کے لیے یوٹیلیٹی سٹور سے سبسڈی والی اشیاء خورونوش خریدنا مشکل ہو گیا۔ شہریوں نے حکومت سے خریداری کے طریقہ کار کو آسان بنانے کا مطالبہ کر دیا۔ آپ کو بتائیں اس حوالے سے کہ خانیوال میں شہریوں کے لیے یوٹیلیٹی سٹور سے سبسڈی والی اشیاء خورونوش خریدنا مزید مشکل ہو چکا ہے۔ شہری نے حکومت سے خریداری کے طریقہ کار کو آسان بنانے کا مطالبہ کر دیا۔ مہنگائی کی چکی میں پسی عوام کے لیے ایک اور مشکل، شہریوں کے لیے یوٹیلیٹی سٹور سے سبسڈی والی اشیاء خورونوش خریدنا مزید مشکل ہو گیا۔ یوٹیلیٹی سٹور سے خریداری کے لیے اب شہریوں کو اپنا شناختی کارڈ نمبر 5566 پر میسج کرنا ہوگا۔ کوڈ ملنے کی صورت میں ہی شہری یوٹیلیٹی سٹور سے سبسڈی والی اشیاء خورونوش خرید سکیں گے۔ شہری کہتے ہیں شناختی کارڈ نمبر سینڈ کرتے ہیں، کوڈ نہیں آتا۔ مجبوری ہے نا پھر مزدور لوگوں دی تے کی کر سکنے اسی یہ میسج ہوں ویکو تہاڈے سامنے 2 میسج کیتے، دونوں کا جواب نہیں آیا۔ حکومت کی یہ کر سکتی، ہوں حکومت کرے نا پھر کچھ۔ شہری کہتے ہیں بہت سے غریب لوگوں کے پاس موبائل فون نہیں، وہ شناختی کارڈ نمبر کیسے میسج کریں۔ حکومت نے عوام سے 2 وقت کی روٹی بھی چھین لی ہے۔ روٹی بھی نہیں بندہ کھا سکتا، کیا کرے غریب عوام۔ اب ہم روزی کریں بچوں کی یا آٹا لیں، کیا کریں سر، ہم تو بہت پریشان ہیں۔ خدا را ہمارے اوپر رحم کیا جائے۔ 650 آٹا ہے تو کیا کر کے تو میسج نہ آگے تو نہ سی لگیے۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر خریداری کے لیے آنے والے شہری خالی ہاتھ ہی واپس لوٹنے لگے۔ شہریوں نے حکومت سے خریداری کے طریقہ کار کو آسان بنانے کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ محمد ردیف مغل، روہی، خانیوال۔ اور ناظرین، حکومت یوٹیلیٹی سٹورز پر کمپیوٹر OTP سسٹم کو اپ ڈیٹ کرنے میں ناکام ہے۔ جنوبی پنجاب میں عام عوام سستی اشیاء خریدنے سے محروم ہو گئے، اب یوٹیلیٹی سٹور سے بھی انہیں سستی اشیاء ملنا بند ہو گئی ہے۔ اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں بہاولپور سے محمود ظہیر کی اس رپورٹ میں۔ بہاولپور کے یوٹیلیٹی سٹورز پر عام عوام کے لیے اشیاء و خورد و نوش کی قیمتوں میں اضافہ، شہریوں کو اب وہاں سے سستی اشیاء ملنا بند ہو گئی ہیں۔ حکومت کمپیوٹر OTP سسٹم کو بھی 4 روز سے اپ ڈیٹ نہیں کر سکی۔ یہاں سودا لینے آتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں اتنا اور سودا لینا پڑے گا 2-3 ہزار روپے کا۔ اب میسج ہوتا نہیں ہے تو وہ کہتے ہیں سودا نہیں ملے گا۔ ایسی پالیسی رکھی ہوئی ہے کہ اس کے بغیر وہ عوام بہت پریشان ہو رہی ہے۔ چیزیں تو مکمل طور پر اویل ہے، آٹا، گھی، چینی مین آئٹم ہے اور ہمہ وقت موجود ہے، اللہ کا کرم ہے، لیکن اس کے باوجود اصل مسئلہ چل رہا ہے OTP کوڈ کا۔ OTP لوگوں کو نہیں آ رہا ہے، جب تک OTP کوڈ نہیں آتا ہم بل نہیں بنا سکتے۔ مزدور آدمی ہیں، ہمیں بھی لائن میں لگا ہوا ہے، کیا آدھا گھنٹہ منا گھنٹہ ہو گیا، آٹا نہیں دے رہے۔ غریب عوام یوٹیلیٹی سٹور سے سستا آٹا، گھی اور چینی خریدنے کی بجائے مارکیٹ سے مہنگے داموں پر خریدنے پر مجبور ہیں۔ شہریوں نے یوٹیلیٹی سٹورز کے سامنے روہی سے شکایتوں کے انبار لگا دیے۔ ان کا کہنا تھا کہ 400 روپے والا 10 کلو آٹے کا تھیلا 650 روپے کا ہو گیا ہے۔ لوگ بہت پریشان ہیں جی، اور یہ حکمران جو ہے نا اس کے پر کوئی غور نہیں کر رہے، بول رہے جی مہنگائی مقاوم مارچ ہے جی، لوگ بہت پریشان ہیں اور 2 وقت کی روٹی بھی بڑی مشکل سے مل رہی ہے۔ آٹو ڈرائیور ہوں، صبح کا نکلا ہوں 2 گھنٹے، آٹا لیں جو روزی کمائیں، آٹے کے پیچھے اتنی قلت ہوگی نا، وہ اسٹیشن سے آئے ادھر تک جا کے ملا ہے آٹا، وہ بھی دیکھیں 2 گھنٹے ہو گئے ادھر۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ یوٹیلیٹی سٹورز پر بھی اشیاء کے ریٹس بڑھا دیے گئے ہیں، لیکن اب بھی یہاں ریٹس بہتر ہیں۔ حکومت OTP سسٹم اپ ڈیٹ کر کے شہریوں کے مسائل حل کرے۔ کیمرہ مین اکرم شاہین کے ساتھ محمود ظہیر، بہاولپور۔
मुल्तान में बढ़ती महंगाई ने आवाम से छोटी छोटी खुशियां मनाने का हक भी छीन लिया। शादी के सजावटी सामान में होशरुबा इजाफा कर दिया गया। महंगाई की वजह से मार्केट में वैरान हो चुकी हैं। मजीद जानते हैं शकील सुल्तान की इस रिपोर्ट में। औलिया के शहर में महंगाई के कारीवार जारी। गुज़श्ता 3 माह में शादी के सजावटी सामान की कीमतों में कई गुना इजाफा हुआ। बेलगाम महंगाई ने आवाम के लिए छोटी छोटी खुशियां मनाना भी मुश्किल तर कर दिया। दुकानदार कहते हैं मार्केट से ग्राहक ही गायब हैं। सामान लेने आया हूँ, मेरे भाई की शादी थी, इतना महंगाई की हुई है। पहले हम सहज सेज लगाते थे, सस्ते में हो जाता था, अब बहुत महंगे दे रहे हैं। दुकानदारों का कहना था कि कागज की लड़ी 110 से बढ़कर 170 रुपए, हाथ का गाना 150 से बढ़कर 250 रुपए, 1000 वाली मेहंदी की टोकरी 1600 रुपए की हो गई। दीगर सजावटी सामान की कीमतें भी 2 से 3 गुना बढ़ गई हैं। जो 1000 वाली चीज़ है 1650 की हो गई है। जैसे मेहंदी का थाल ले लें आप, जो 400 का था वो 800 का हो गया है। कस्टमर को हम 820 रुपये बताते हैं ना, उनकी जान निकल जाती है। वो काम अपने काम सामान को छोड़कर चले जाते हैं। हम सारा दिन यहाँ बैठे रहते हैं। महंगाई से परेशान दुकानदारों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि बुनियादी अशिया की कीमतों को कंट्रोल में रखा जाए। कैमरामैन हारून ताहिर के साथ शकील सुल्तान, मुल्तान। तवानाई बचत पॉलिसी खुश आइंद है। मियावाली के ताजरों ने हुकूमती पॉलिसी को बेहतरीन करार दे दिया। कहते हैं शॉपिंग मॉल्स, मार्केट्स और मार्केटें बंद होने से बिजली की बचत होगी। अख्तर मिजाज की रिपोर्ट में देखिए। मियावाली के ताजरों ने हुकूमत की तवानाई बचत पॉलिसी को बेहतरीन करार दे दिया। कहते हैं 8:30 बजे मार्केटों की बंदिश से बिजली की बचत होगी और दिन के औकात में लोड शेडिंग कम हो जाएगी, क्योंकि बेशतर कारोबार दिन के औकात में ही होते हैं। हुकूमत के इस फैसले से बहुत मुतफिक है। अगर 8:30 बजे दुकानें बंद कर दी जाए, मियावाली के अंदर पूरे पाकिस्तान भर का ओवरऑल बिजली का बहरान पैदा हुआ है। इससे अगर 8:30 बजे मार्केटें बंद होती हैं, उससे बिजली की काफ़ी बचत होगी और अच्छा फैसला है, जो कि इससे बिजली काफ़ी इसकी बचत हो सकती है। जो हमारे इधर जो बड़े बड़े शॉप हैं, उनकी लाइट्स होती हैं, वो ख़त्म हो जाएंगी, वो बंद हो जाएंगी। इससे जो हमारा दिन का जो दौरानिया है बिजली का, वो बढ़ जाएगा। हमें बिजली मुहैया की जाएगी दिन के वक्त, क्योंकि इधर से जो दफातर हैं उनका काम अच्छे तरीके से हो सकता है। स्कूल, कॉलेज वगैरह दिन के वक्त भी वो पढ़ सकते हैं। ताजरों का मजीद कहना था कि मार्केट्स खुले होने से बिजली का ज़िया होता है। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियावाली। मुल्तान इंतजामिया की अदम तवज्जोही, जनरल बस स्टैंड पर पनाहगाह बुनियादी सहूलियात से महरूम। मुस्तहकीन को सुबह शाम खाने की फराहमी का सिलसिला भी रुक गया। सर्दी से बचाव के लिए मुनासिब इंतजाम न होने से मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना है। सुहैरा तारिक की रिपोर्ट देखिए। शहर मुल्तान में मुसाफिरों और मुस्तहकीन के लिए मुश्किलात बढ़ गईं। जनरल बस स्टैंड पर गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में बनाई गई पनाहगाह सहूलियात से महरूम है। सर्दी से बचाव के लिए इंतजामात नाकाफ़ी हैं, जबकि मुसाफिरों का कहना है कि हीटर ना होने की वजह से सख्त सर्दी में आराम करना मुश्किल हो गया है। हुकूमत चेंज हुई है, ना ही यहाँ कोई खाने का इंतज़ाम है और ना ही कोई हीटर वगैरह, जैसे कि सर्दियाँ रात को ठंड हो जाती है, उसकी वजह से बड़ी मुश्किलात का सामना है यहाँ। गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में मुसाफिरों और मुस्तहिक अफराद को सुबह शाम मुफ्त खाना फराहमी का सिलसिला भी अब ख़त्म हो चुका है, जबकि सहूलियात की अदम दस्तयाबी के बायस मुसाफिरों ने पनाहगाह का रुख करना ही छोड़ दिया है। यहाँ पर ना हीटर का इंतज़ाम है, सर्दियों का मौसम है, यहाँ मुसाफिर हज़रात आते हैं, इनके साथ फैमिली होती है, बच्चे भी होते हैं, बूढ़े भी होते हैं। हालांकि यहाँ पर वो अब पहले खाना जो दिया जाता था, लेकिन वो इस वक्त बंद हो चुका है। खाना हमें ज़रूरत है यहाँ पर। पनाहगाह की ताज़ीन और आइश के लिए लगाए गए PHA के प्लांटर्स और पौधे भी देखभाल न होने की वजह से मुरझा गए हैं। ताहम शहरियों ने मुतल्लका हुकाम से पनाहगाह में बुनियादी सहूलियात की फराहमी का मुतालबा किया है। कैमरामैन एडी नवाज के साथ सुहीरा तारिक, मुल्तान। मुल्तान की खस्ता हाल सड़कें जिला इंतजामिया की नजरों से ओझल। कला कहना कासिम बाग से मुल्हका शाहरा पर मौत के साए मंडलाने लगे। सड़क के तरफ हिफाजती दीवार न होने और बेजा ट्रैफिक से राहगीरों को शदीद परेशानी का सामना है। मजीद देखिए सुहैरा तारिक की इस रिपोर्ट में। शहर औलिया के बासियों को टूटी फूटी सड़कों से छुटकारा न मिल सका। किला कोना कासिम बाग से मुल्हिका शाहरा खतरे की अलामत बन गई। रोड के अतराफ में हिफाजती दीवार न होने की वजह से गहरी खाई दिखाई देने लगी, जबकि शाहरा पर ट्रैफिक का दबाव ज्यादा होने के बायस राहगीरों को शदीद परेशानी का सामना है। ये ट्रैफिक मकसद यहाँ पर होती है, रात का टाइम या दिन के टाइम में कोई भी हादसा यहाँ पेश हो सकते हैं, तो लिहाजा ये ज़रूरी चीज़ है
इसको भी करना चाहिए। और अंदरून में तमाम गैस लाइन जो पटी हुई है, उसके अलावा वहाँ ना कोई डालने वाला आ रहा है ना उसको बनाने वाला आ रहा है, और लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी है गैस की तरफ से भी। खौफ में मुब्तला शहरियों का कहना था कि अक्सर यहाँ रश रहता है, ऐसे में हिफाजती इकदाम ना होने की वजह से ये गहरी खाई किसी भी वक्त हादसे का सबब बन सकती है। तो इस दीवार का टेंडर मंजूर हुआ है, लेकिन काम में बहुत ताखीर की जा रही है। तो हमारी पुरजोर जो है ना अपील है कि इस काम को जल्द से जल्द निपटाया जाए और दीवार का मसला हल किया जाए। शहरी हलकों ने अरबाब इख्तियार से किले के अतराफ वास्ती दीवार बनवाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मुजाहिद सुल्तान के साथ सुहीरा तारिक, मुल्तान। रीजनल पुलिस ऑफिसर राव मुनीर जिया ने डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिस दफ्तर का फॉर्मल सालाना दौरा किया। आरपीओ को कहना था कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस समेत बहावलपुर के थानों की तज़ीनो आराइश बेहतर बनाई जाए। फॉर्मल इंस्पेक्शन होती है और ये इंस्पेक्टर जनरल साहब की तरफ से जो है ना हर ऑफिसर को अलाट होती है, और इसमें पूरे जो साल की कारकर्दगी है ईच एंड एवरी ब्रांच वो उसको बड़ा माइन्यूटली देखा जाता है। उसमें जो कमी कुताही होती है उस पर सजा जजा भी होती है, और ये एक यूँ समझ लें कि एक चेक मैकेनिज़्म है सिस्टम को जो है बेहतर करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए, और उसमें कोई कमी कुताही है तो उसको रफ़ा करने के लिए। तो अभी इंस्पेक्शन शुरू किए माशाल्लाह। ये डीपीओ साहब ने बड़ा कल्चरल हेरिटेज को प्रिजर्व करते हुए इनकी एस्थेटिक सेंस को आई अप्रिशिएट, और जो इन्होंने आउट ऑफ द बॉक्स और आउट ऑफ द वे जाके जो काम किया है ही रियली डिजर्व्स अप्रिशिएशन। हमें तो जब तक बिल्डिंग हैंड ओवर नहीं होगी उस वक्त हम कुछ नहीं कर सकते। इस वक्त वो बिल्डिंग डिपार्टमेंट या C&W ये जो रेलेवेंट डिपार्टमेंट है उनकी जो है वो समझ लें कि कस्टडी में है। जब उन्होंने कंप्लीट कर लेना है प्रोजेक्ट, उसके बाद इन्होंने हमें हैंड ओवर करना है। हम उसको बाकायदा इंस्पेक्ट करके कि किस स्टैंडर्ड पे हमें उन्होंने हैंड ओवर करना था उसको हम इंस्पेक्ट करेंगे, फिर हमें उन्हें कंप्लीशन सर्टिफिकेट देंगे कि ये सेटिस्फेक्शन के मुताबिक बन गई। फिर वो अभी उनके कोई प्रोसीजरल काम रहता है, जब वो हमें हैंड ओवर करेंगे तो फिर वो हम उसको टेक ओवर कर। आपको बताएं, रहीम यार खान डिस्ट्रिक्ट बार में इलेक्शन की गहमा गहमी। स्टार लायर्स ग्रुप की जानिब से गरम गरम नाश्ते का एहतमाम किया गया। सदारत के उम्मीदवार मर्ज अमीन खान, एडवोकेट और जनरल सेक्रेटरी के उम्मीदवार फहीम नवाज खान का कहना था 14 जनवरी पूरे पैनल की जीत का दिन होगा। देख ले, मेरे दाएं और बाएं सारे मेरे वोटर हैं, मेरे भाई हैं, मेरे लिए टाइम निकाल के आए हैं। और यूथ जो है डिस्ट्रिक्ट बार का मुस्तकबिल है, हमारे मुल्क का मुस्तकबिल है, और यूथ मेरी है, ये मैं क्लेम करता हूँ। इंशाल्लाह ताला 14 जनवरी को साबित होगा कि यूथ मिर्ज़ा अमीन खान की है और किसी की यूथ नहीं है। इसलिए कि यूथ के मसले अगर कोई समझता है तो वो सिर्फ मिर्ज़ा अमीन समझता है, इसके अलावा कोई और कैंडिडेट नहीं समझता। और इंशाल्लाह ताला 14 जनवरी को जो सूरज जो साबिक वज़ीर आज़म और बानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 95वीं सालगिरह। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस हवाले से मुल्क भर में तकारीब का इनेकाद किया। मुल्तान में सजी तकरीब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ओहदेदारान और कारकुनान ने सालगिरह का केक काटा। इसी हवाले से रिपोर्ट करें सहेज बुखारी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी साबिक वजीर आजम और बानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 95वीं सालगिरह। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुल्तान में भी इस हवाले से तकरीब सजाई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ओहदेदारान और कारकुनान ने तकरीब में सालगिरह का केक काटा। ये भुट्टो साहब की जब से हमारी पार्टी बनी है ये एक रवायत चलती आ रही है। आज 95 साल हो गए हैं, हमारी पार्टी आज तक 100 साल समझ लें कि इस पे कायम है और चल रही है। अवाम ने उन्हें कह दिया, अवाम का खिताब दिया, और आज अवाम उनकी सालगिरह हो, उनकी बरसी हो, उनका कोई त्यौहार हो, वो अपना त्यौहार से ज़्यादा बढ़ के मनाते हैं। इसलिए और खराज तहसीन पेश करने के लिए, उनकी कौमी खिदमत को अपना खराज अकीदत पेश करने के लिए ये सफ़र हम उस वक्त तक जारी रखेंगे जब तक उनके मिशन की हम तकमील पूरी कर लेते। पीपल्स पार्टी के सिटी सदर नसीम लाबर का कहना था कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को आज के दिन खराज अकीदत पेश करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान की वाहिद नुमाइंदा जमात है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो का यौम पैदाइश मना रहे हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब से वजूद में आई है हम ये सालगिरह हर साल मनाते हैं, और हम जुल्फ़िकार अली भुट्टो के अफकार का तजदीद ऐद इसी दिन करते हैं।
कायदे अवाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद साहब ने ये पार्टी गरीब किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, तालिब इल्मों के लिए और पिछड़े हुए तबके के लिए ये जमात बनाई और उनके हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज भी कायदे अवाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सालगिरह मनाते हैं और उनकी खिदमात को खराज तहसीन पेश करते हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की सालगिरह के मौके पर ये तकरीब का इनेकाद किया गया है आज, और आज हम उनको खिराज अकीदत भी पेश करते हैं और उनकी जो कुर्बानियाँ हैं जमहूरियत के लिए, उनकी जो कुर्बानियाँ आवाम के लिए, हम आज के दिन उनसे वादा करते हैं कि उनको फरामोश नहीं करेंगे और इंशाअल्लाह उनके मिशन को जारी रखेंगे। सालगिरह की तकरीब में रिजवान हांस, फरहान दरीशक, ख्वाजा रिजवान, राव साजिद समेत दीगर पार्टी ओहदेदारान भी शरीक हुए। कैमरामैन आमिर शाह और इरफान असलम के साथ सैयद ज़ुएब बुखारी, रोही, मुल्तान। मुल्तान के मदरसा जामिल उलूम में नायब अमीर जमात इस्लामी खुर्शीद खान कांजू की याद में ताज़ियती रेफरेंस, सियासी और समाजी शख्सियत की शिरकत। नायब अमीर जमात इस्लामी हाफिज अदरीस का कहना था मरहूम का मिशन जारी रहेगा। जुनेद अनवर की रिपोर्ट में देखिए। मुल्तान के मदरसे जामिल उलूम में नायब अमीर जमात इस्लामी खुर्शीद खान कांजू की याद में ताज़ियती रेफरेंस का इनेकाद किया गया। नायब अमीर जमात इस्लामी हाफिज इदरीस खुसूसी तौर पर शरीक हुए। उनका कहना था कि खुर्शीद खान कांजू खुले दिल के आदमी थे, उनका मिशन जारी रहेगा। मुझे बहुत लंबा अरसा उनके साथ एक काफिले में चलने का, मुश्किलात को बर्दाश्त करने का, चैलेंजेस को फेस करने का मौका मिला और मैंने हमेशा ये महसूस किया कि वो बंदा खुदा, ऐसी कैफियत थी उसकी कि तौहीद तो ये आलम है, तो तौहीद तो ये है कि खुदा हश्र में कह दे ये बंदा दो आलम से खफा मेरे लिए। मरहूम के साहिबजादे और डिविजनल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून का कहना था कि खुर्शीद खान कांजू मोहब्बत करने वाले इंसान थे। अल्लाह ने हमारे अबू पर भी एक ऐसी रहमत और उसकी नेमत की थी कि हमने उनको हमेशा पाक साफ जिंदगी बसर करते देखा है और जितना उनका हमसे ताल्लुक था उतना ही उनका इस मदरसे से, यहाँ पढ़ाने वाले बच्चों से और आप तमाम बच्चों से था। इस पूरी जमात के कायदीन के साथ था, इन सब रहनुमाओं के साथ था। ताज़ियती रेफरेंस में अमीर जमात इस्लामी जनूबी पंजाब राव मोहम्मद जफर, साबिक रुकने कौमी असम्बली शेख तारिक रशीद, रहनुमा मुस्लिम लीग नून बाबर शाह, मलिक अनवर अली, राना अली अकबर, अब्दुर्रहमान फरी, आमिर मंजूर अंसारी, रहनुमा पीपल्स पार्टी खालिद हनीफ लोधी, जिला जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून अतर मुमताज, रहनुमा जमात इस्लामी हाफिज असलम और मौलाना इनामुल्लाह समेत दीगर रहनुमा शरीक हुए। कैमरामैन हारून के साथ जुनेद अनवर, मुल्तान। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में ब्रेल का आलमी दिन मनाया गया, लेकिन इंतजामिया की नाअहली से बसारत से महरूम तलबा का मुस्तकबिल दांव पर लग गया। जनूबी पंजाब के तलबा 6 साल से नई ब्रेल किताबों से महरूम है। मजीद देखिए अलिशा आसिफ की रिपोर्ट में। मोहम्मद बिन कासिम ब्लाइंड सेंटर में ब्रेल डे मनाया गया। नाबीना तुलबा और तालबात ने केक भी काटा। ब्लाइंड सेंटर में मौजूद तुलबा ने ब्रेल किताबों की अदम दस्तयाबी पर शिकवा किया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जुमर है, मैं 6 क्लास में पढ़ती हूँ। ब्रेल हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और इसी से हम लिखना पढ़ना सीखते हैं। ब्रेल हर ब्लाइंड शख्स के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो अपनी एजुकेशन तलीम के हवाले से बहुत कोशिश करता है, तदगो करता है कि मैं अपनी तलीम को जारी रख सकूँ। जिस तरह बाहर के ममालिक में ब्लाइंड को इजाज़त दी जाती है और बुक्स दी जाती हैं, इस तरह हमें ब्लाइंड को बुक्स देना बहुत ज़रूरी है। ब्लाइंड सेंटर की चेयरपर्सन सादिया किरमानी का कहना था कि बसारत से महरूम अफराद के लिए ब्रेल किताबें किसी नेमत से कम नहीं। ऑडियो में पढ़ने से बच्चे वो लफ्ज लिखना नहीं जान पाते जो कोडिंग सिस्टम के जरिए जान पाते हैं। ब्रेल किताबें नाबीना अफराद को खुद मुख्तार बनाती हैं। ब्रेल नाबीना अफराद के लिए खुद मुख्तारी की अलामत है कि वो किसी पर जो है डिपेंडेंट नहीं होते। बच्चे हमारे खुद नोट्स जो है बनाते हैं, टीचर्स जो हैं बुक्स खुद लिख रहे होते हैं यहाँ पे। और हाँ, अगर कोई पूरा का पूरा सिलेबस हो जाए चेंज तो फिर हमें भी जो है बड़ी क्लासेस के लिए ऑडियो पर आना पड़ता है। नाबीना तुलबा का कहना था कि निसाब में जब भी रद्दोबदल होता है तो असातिज़ा की जानिब से ऑडियो में पढ़ाया जाता है, जिसकी वजह से मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लफ्जों की पहचान सिर्फ किताबों के जरिए ही हो सकती है। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ अलिशा आसिफ, मुल्तान। डायरेक्टर रीजनल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट बहावलपुर 35 साल सर्विस मुकम्मल करके रिटायर्ड। एग्रीकल्चर सेक्रेटरीट में डायरेक्टर RARI डॉक्टर लाल हुसैन अख्तर के एजाज में अलविदाई तकरीब सजाई गई। अलविदाई तकरीब का अहवाल जानने के लिए देखते हैं अली रियाज की रिपोर्ट। एग्रीकल्चर सेक्रेटेरिएट में डायरेक्टर RARI डॉक्टर लाल हुसैन अख्तर के एजाज में अलविदाई तकरीब का इनेकाद। डॉक्टर लाल हुसैन अख्तर 35 साल सर्विस के बाद रीजनल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट बहावलपुर से रिटायर हुए हैं।
सेक्रेटरी ज़राअत जनूबी पंजाब डॉक्टर फैसल ज़हूर समेत दीगर अफसरान ने डॉक्टर लाल हुसैन अख्तर को खिराजे तहसीन पेश किया। इस मौका पर डॉक्टर लाल हुसैन अख्तर को शील्ड और गुलदस्ते पेश किए गए। सेक्रेटरी ज़राअत जनूबी पंजाब डॉक्टर फैसल ज़हूर का कहना था कि डॉक्टर लाल हुसैन अख्तर की खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। प्रिंसिपल साइंटिस्ट जो रारी इंस्टीट्यूट के डॉक्टर लाल हुसैन, इनकी आज कल रिटायरमेंट डेट है, तो आज हमने इनको फेयरवेल दी है। इनकी बहुत खिदमात है इदारे के लिए। इन्होंने बहुत सारी हमारी नई वैरायटीज़ की डेवलपमेंट में 35 साल तक काम किया है रिसर्च में, और ये लीडिंग साइंटिस्ट है हमारे एग्रीकल्चर के इस वक्त। रीजनल डायरेक्टर डॉक्टर लाल हुसैन अख्तर का कहना था कि जो मोहब्बतें उन्हें सर्विस के दौरान मिली हैं, उन्हें कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 35 साल 10 दिन इस महकमा में गुजारे हैं मुख्तलिफ पोस्टों पर, और मैंने कोशिश की है कि अपनी पूरी सलाहियतों के साथ, तनदेही के साथ अपने काम को अंजाम दिया है, जिसका रिज़ल्ट आपके सामने है कि कम अज़ कम 15 से 17 वैरायटीज़ ऐसी हैं मुख्तलिफ क्रॉप्स की जो मेरे दौर में अप्रूव हुई हैं। सेक्रेटरी ज़राअत जनूबी पंजाब ने डॉक्टर लाल हुसैन को गाड़ी तक छोड़कर दफ्तर से अलविदा किया। कैमरामैन एडी नवाज के साथ अली रियाज, मुल्तान। रहीम यार खान में खेलों का 5 रोजा मेला जारी। डेप्यूटी कमिश्नर स्पोर्ट्स काला के दूसरे रोज चारों तहसीलों के दरमियान हॉकी के बड़े मुकाबले हुए। मजीद देखिए आमिर भट्टी की इस रिपोर्ट में। इमरान खान में 5 रोजा डिप्टी कमिश्नर स्पोर्ट्स गाला जारी है। दूसरे रोज अब्बासिया स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में हॉकी के मुकाबले हुए। पहले मैच में तहसील लियाकतपुर में 3 गोल से खानपुर को शिकस्त दे दी। दूसरे मुकाबले में तहसील सादकाबाद ने रहीम यार खान को 1 गोल से हरा दिया। शायकीन ने खिलाड़ियों की शानदार परफॉर्मेंस को खूब इंजॉय किया। यूथ हमारी ग्राउंड के अंदर आएगी तो ये बुरे आदत से, बुरे कामों से बच सकेंगे। तो एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब ने। मैं समझता हूँ ऐसे तमाम जिलों में इसी तरह मेले सजने चाहिए ताकि हमारी यूथ जो सेहतमंद सरगर्मियों में शामिल हो। खिलाड़ियों ने मैच जीतने के लिए खूब जान लड़ाई। खेलों में बहुत मजा आ रहा है, इसमें एंजॉय करें। इंशाल्लाह हमारी खानपुर में टीम ही जीतेगी। बहुत अच्छा टूर्नामेंट है और बहुत मजा आ रहा है, एंजॉय हो रहा है। 5 रोजा स्पोर्ट्स गाला के दौरान खेलों के मैदान सजे रहेंगे। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज, रहीम यार खान। न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही।